السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 8۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ چینی منشیات فروش یاؤ نے مسکراتے ہوئے سیمور کو رخصت کیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد اس نے لوہے کا اضافی دروازہ بند کر دیا اور اس میں تالا لگا دیا۔ پھر اس نے لفٹ کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ دروازے میں 2 لوگ تھے جو کلک کی آواز کے ساتھ بند ہو گئے۔ یاؤ اس معاملے میں بہت محتاط آدمی تھا۔ دروازے میں باہر جھانکنے والا چھوٹا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ سیمور کوئن پلٹا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی۔ 12 منزل نیچے اترنا بہرحال چڑھنے کے مقابلے میں ہلکا کام تھا۔ سیمور اس وقت فتح کے احساس سے سرشار تھا، لیکن کچھ تشویش زدہ بھی تھا۔ اس نے $400 میں یاؤ سے اتنی وین خرید لی تھی جو جانسن $1000 میں خریدنے کو تیار تھا۔ اب سیمور کو بس واپس فلیٹ پہنچ کر جانسن کو مال دے کر رخصت کرنا تھا۔ جیب میں موجود $600 اس کے اپنے تھے، لیکن جیب میں موجود ہیروئن اسے انگارے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جے کو اگر اس معاملے کا علم ہو گیا تو وہ پاگل ہوئی ہو جائے گا، لیکن جے کو کچھ معلوم ہونے کا سوال ہی نہیں تھا اور $600 کے لیے خطرہ تو مول لیا جا سکتا ہے۔ وہ نیچے اترا، لابی میں آیا اور وہاں کھڑا چلنے میں پلک کے جھپکتا رہا۔ لابی میں اندھیرا تھا، اوپر لگا ہوا بلب شاید فیوز ہو چکا تھا۔ جس وقت وہ آیا تھا اس وقت تو اس نے اندھیرے کو نعمت سمجھا تھا، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں غیر ملکی شاذ و نادر ہی دیکھے جاتے تھے، لیکن اب اندھیرا اسے برا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے دائیں پہلو کی طرف سے کسی نے کہا، ہولڈ اٹ دیئر۔ لہجے سے وہ کوئی مقامی ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ آواز سنتے ہی سیمور کو ان کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے دائیں طرف سر گھما کر دیکھا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑا شخص ہیلا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ ہیلا اس کی طرف بڑھا۔ بس ساکت کھڑے رہو، اس شخص نے تہمکانہ لہجے میں کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ سیمور منمنایا، حالانکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا اور خوف سے اپنے پیٹ میں گریں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا نام وبھاکر ہے، انسپیکٹر وبھاکر، نارکوٹکس بیورو سے تعلق رکھتا ہوں۔ تم ساکت کھڑے رہو اور میرے ایک سادہ سے سوال کا سادہ سا جواب دو۔ تم یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ یہ کہہ کے اسے لفٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اب سیمور لفٹ کی دھیمی روشنی میں کھڑا تھا، جبکہ انسپیکٹر اندھیرے میں تھا۔ انسپیکٹر گھوم کے اس کے پیچھے آنے لگا۔ سیمور نے سوچا اگر بھاگنے کا کوئی موقع ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تھا، مگر انسپیکٹر نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی، میں تمہیں بھاگنے کا مشورہ نہیں دوں گا بیٹے، ذرا غور سے سنو۔ لابی میں کلک کی دھاتی آواز گونجی۔ وہ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹائے جانے کی آواز تھی۔ ہاں، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، انسپیکٹر وبھاکر نے کہا۔ جواب دو، تم یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ ویسے میں بڑی سے بڑی شرط لگانے کو تیار ہوں۔ تم 12ویں منزل پر جونی یاؤ سے مل کر آ رہے ہو؟ نہیں، میں تو اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ تو پھر کس سے مل کر آئے ہو؟ شاید یاد ہی نہیں رہا تمہیں۔ سیمور کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، اس پر بے بسی طاری تھی، وہ کیا جواب دیتا۔ انسپیکٹر وبھاکر اس کے پیچھے نیم دائرے کی شکل میں ٹہل رہا تھا، پھر وہ رکا اور اگلے لمحے اس کی ریوالور کی نول سیمور کی ریڑھ کی ہڈی میں چبھنے لگی۔ چلو پیچھے ہٹو اور دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھ دیوار سے لگے رہیں اور ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوں، نارکوٹکس انسپیکٹر نے ہدایت دی۔ سیمور نے خودکار انداز میں اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب وہ جہاں کھڑا تھا وہاں نسبتاً زیادہ روشنی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اونچے کر کے دیوار سے ہتھیلیاں ٹکا دی۔ اس کے چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ میں نے کہا ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوں، انسپیکٹر غرایا۔ سیمور نے ٹانگیں پھیلا لی، اب وہ پوری طرح بے بس تھا، ریوالور اس کی پشت پر چبھ رہا تھا۔ انسپیکٹر نے دوسرے ہاتھ کی مدد سے ماہرانہ انداز میں اس کی جامہ تلاشی لی۔ چند سیکنڈ میں سے پلاسٹک کی وہ تھیلی مل گئی جس میں ہیروئن تھی۔ تھیلی لفافے میں تھی اور لفافہ پتلون کی داہنی جیب میں تھا۔ انسپیکٹر نے تھیلی کھول کر اسے سونگا پہ چہک کر بولا، جمی یاؤ کا تحفہ خاص۔ دیکھو مسٹر، یہ وہ موقع ہے جس کی مجھے عرصہ سے تلاش تھی، سمجھے؟ میں مدت سے یاؤ کے چکر میں ہوں، اب اسے اندر ہونا ہے اور اس نیک کام میں تم میری مدد کرو گے۔ اچھا پلٹو، لیکن آہستگی سے۔ سیمور پلٹا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اب پہلی بار اسے انسپیکٹر کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اوسط قد کا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، کوتا گردن تھا اور اس کے کندھے بھاری تھے، صورت سے ہی سخت گیر لگتا تھا۔ اس کی ریوالور کا رخ سیمور کے پیٹ کی طرف تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ ریوان کی تھیلی اپنی جیب میں رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ہاں بیٹے، تمہیں اندازہ ہے کہ تم بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو، وہ بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں، سیمور نے کہا۔ تم امریکی ہو؟ ہاں۔ سیلر ہو؟ کسی جہاز سے اترے ہو؟ جی ہاں، سیمور نے تیزی سے جھوٹ بولا۔ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم امریکی سیلر جہازوں پر لوگوں کو نشے کی لت میں مبتلا کر دو۔ میرا کام بس یاؤ جیسے لوگوں کو تم جیسے لوگوں کے ہاتھ زہر فروخت کرنے سے روکنا ہے۔ میں اس چینی کو کم از کم 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میری مدد کرو گے تو سستے چھوٹ جاؤ گے، انکار کرو گے تو کم از کم 5 سال کے لیے جاؤ گے تم بھی۔ سیمور کو اب خاصی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ بات سادہ سی ہے اور کام آسان۔
याओ तुम पर एतबार करता है, तुम दोबारा इसके फ्लैट पर जाओ और इतलाई घंटी बजाओ। इसे कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि वो तुम्हारी दरवाज़ा खोल दे। इससे कहना तुम्हें मज़ीद माल चाहिए, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, बस ऐसा हो कि वो दरवाज़ा खोल दे। मैं इसके पीप होल की रेंज से दूर तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लोहे का दरवाज़ा खोलते इसे धर लूँगा, समझे? ये है मेरा तरीकाकार। मुझे अकेले काम करना ही पसंद है। वैसे मैं किसी भी वक्त सर्च वारंट ला सकता हूँ। याओ को मेरे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, मगर दरवाज़ा खोलने से पहले वो तमाम सबूत मिटा चुका होगा। तुम्हारी मदद से मैं इसे बेखबरी में पकड़ सकूँगा। मैं समझ गया, सीमोर ने कहा। अब वो पुरस्कून था और फैसला कर चुका था। इसे इंस्पेक्टर की इस बात पर यकीन नहीं था कि वो इसकी सज़ा हल्की करा देगा। नारकोटिक्स वाले दुनिया भर में एक जैसे ही होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप ना लेते हैं, मगर बख्शते किसी को भी नहीं। ताहम ये ज़रूर था कि इंस्पेक्टर को यह तासुर दिया जाए कि वो पूरी तरह इसके काबू में है, लिहाजा ताउन का ड्रामा ज़रूरी था। चुनांचे इसने कहा, मेरे पास तुम्हारी बात मानने के सिवा कोई चारा ही क्या है। अक्लमंद हो, बस तो फिर चलो मेरे साथ। और याद रखना, अगर तुमने नादानिस्तगी में कोई भी ऐसी हरकत सरजद हुई जिससे वो बाखबरदार हो तो तुम उम्र भर पछताओगे। बस अब चल दो। इसने सीमोर को आगे आगे चलने का इशारा किया। सीमोर जीनों की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर भी भागकर इसके पीछे था। सीमोर को 12 मंजिल चढ़ने की वो मुशक्कत बहुत गिरा गुजर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर से 2 सीढ़ी पीछे चल रहा था। 11वीं मंजिल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने इसे आखिरी हिदायत दी। याओ के दरवाजे पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि याओ को पीप होल से नजर ना आ सके। फिर सीमोर ने तलाई घंटी का बटन दबाने का इशारा किया। सीमोर ने बटन दबाया। एक लम्बे बाद इसे एहसास हुआ कि याओ अंदर से पीप होल के जरिए इसे देख रहा है। फिर याओ ने पूछा, क्या बात है? मुझे मजीद माल दरकार है, सीमोर ने कहा। इतनी जल्दी? जिस शख्स के लिए मैंने माल लिया है वो नीचे कार में बैठा है। इसे माल बहुत पसंद आया है। इससे मुझे और रकम दी है माल खरीदने के लिए। रकम दिखाओ। बंद दरवाजे के पीछे से याओ की आवाज़ आई। सीमोर ने जेब से जॉनसन की बाकी मानता रकम निकालकर पीप होल के सामने लहराई। ये $600 है। इसने कनखियों से इंस्पेक्टर को देखने की ख्वाहिश को दबाते हुए कहा। इसे एहसास था कि इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर का रुख इसके पेट की तरफ है। रकम के जलवे ने काम दिखाया। चंद लम्हों की हिचकिचाहट के बाद याओ ने दरवाज़ा खोला, फिर जेब से चाकू निकालकर हिफाजती दरवाज़ा का ताला खोला और फिर कुंडी खोल दी। हिफाजती दरवाज़ा खुलते इंस्पेक्टर नहायत फुर्ती से सामने आया। अब इसके पिस्तौल का रुख याओ की तरफ था। वो पहला मौका था कि सीमोर रिवॉल्वर की शर्त से बाहर था। चलो मेरी जान, अंदर चलो, आहिस्तगी से, शराफत से। इंस्पेक्टर ने याओ को चमकारा। याओ के चेहरे पर शाक और बेरहमी का मिला जुला तासुर था। इसने रिवॉल्वर से नजरें हटाई और सीमोर को देखा। मैं मजबूर था, सीमोर ने मुआज़्ज़त खाना अंदाज में कहा। इसने बाहर निकलते मुझे धर लिया था। शट अप, इंस्पेक्टर ने डांटा। तुम भी अंदर चलो, इसके पीछे। सीमोर को अंदर जाने का मौका देने के लिए इंस्पेक्टर को मजीद पीछे हटना पड़ा। सीमोर ने हरकत में आने के लिए इसी लम्हे का इंतखाब किया। वो यूं इंस्पेक्टर के सामने जैसे अंदर दाखिल होना चाह रहा हो। फिर वो पीछे की तरफ झपटा। इसका हदफ इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर वाला हाथ था। इसने इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर वाला हाथ थामकर इसे पूरी कुव्वत से लोहे के हिफाजती दरवाजे पर दे मारा। रिवॉल्वर नीचे गिर गया। इंस्पेक्टर की कलाई बदस्तूर थामे हुए सीमोर ने इंस्पेक्टर को घुमाया और उसके पेट में पूरी कुव्वत से घोंसा मारा। इंस्पेक्टर के हलक से कराह निकल गई। याओ के हलक से बेइख्तियार किस्म की अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। इंस्पेक्टर विभाग का जानदार आदमी था। वो फौरन सीधा हुआ, इसका दाना हाथ घूमा। इसका हदफ सीमोर का सर था, लेकिन सीमोर ने बड़ी फुर्ती से बाएं हाथ से ब्लॉक किया। फिर इसने दाने हाथ की झपकी दी। इंस्पेक्टर ने इसी हिसाब से झुकाई दी और नीचे गिरे हुए रिवॉल्वर की तरफ रखा। इसकी उंगली रिवॉल्वर के दस्ते पर जमी थी कि सीमोर ने पूरी कुव्वत से अपना बूट रिवॉल्वर पर रख दिया। इसकी उंगलियों को मसल दिया। इंस्पेक्टर की चीख निकल गई। सीमोर ने झुककर रिवॉल्वर उठा लिया। इसने रिवॉल्वर का रुख इंस्पेक्टर की तरफ कर दिया जो पहलू के बल जमीन पर पड़ा था। इसने अपने सीधे हाथ की कुचली हुई उंगलियां दूसरे हाथ में दबाई हुई थी। सीमोर ने याओ की तरफ देखा। इसकी आवाज़ें बंद हो गई थी। अपनी जगह पत्थर के बुत की तरह खड़ा था। बेयकीनन इसके जिस्म को अकड़ा दिया था। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वरना वो इतनी देर में अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर लेता। उठो, सीमोर ने रिवॉल्वर लहराते हुए इंस्पेक्टर से कहा, मगर चारों हाथों पैरों पर। इंस्पेक्टर भी भाग करने तामील में याफे जानी। वो चारों हाथों पैरों पर जानवर की तरह खड़ा हो गया। इसके सीधे हाथ की उंगलियां सूज गई थी। सीमोर के जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी जो जिदोजहद का रद्द-ए-अमल था। इससे कतई नजर वो पूरी तरह अपने काबू में था। अब तुम रेंगते हुए फ्लैट में चलो। इंस्पेक्टर चारों हाथों पैरों पर चलता हुआ फ्लैट में दाखिल हो गया। उठने की कोशिश न करना, सीमोर ने इसे चैलेंज किया। फिर वो इस पर रिवॉल्वर ताने इसके पीछे पीछे चल दिया। तुम भी अंदर चलो, इसने याओ को हुक्म दिया। वो दोनों निशिस्त गाह तक पहुंचे तो सीमोर वापस चल दिया। इसने हिफाजती दरवाजे की कुंडी में उठा हुआ भारी ताला निकाला जिसमें चाबी लगी हुई थी। इसने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया, फिर बाहर निकलकर हिफाजती दरवाजे की कुंडी लगाई, इसमें ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। अब तुम दोनों अपने मामलात आप इसमें निपटा लो, इसने चीख कर कहा। इंस्पेक्टर भी भागकर सूरत हाल समझते उठ गया। इसने लपक कर फ्लैट का अंदरूनी दरवाज़ा खोला। तुम समझते तुम बच निकलोगे? इसने सीमोर को चैलेंज किया। अब बच निकलूंगा। जब तक तुम इस फ्लैट से निकलोगे मेरा जहाज पोर्ट छोड़ चुका होगा। सीमोर ने सेलर होने का तासुर दिया और पुकार कर कहा, अब तुम्हें और लंबी सजा होगी। इंस्पेक्टर घुर्राया।
इस सूरत में क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम दोनों को ठिकाने लगा दो? सिमोन ने खौफनाक लहजे में कहा। यह सुनकर इंस्पेक्टर को सांप सूंघ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें तकलीफ क्या है, सिमोन बोला। तुम्हारा शिकार तुम्हारे कब्जे में है। अपार्टमेंट की तलाशी लो, शहादतें जमा करो, यूं भी वक्त गुजर जाएगा और तुम्हारी मुद्दतों की आरज़ू पूरी होने का सामान भी हो जाएगा। इसने इंस्पेक्टर का रिवाल्वर पतलून की जेब में उड़सा कमीज पतलून से बाहर निकाली और जीनों की तरफ बढ़ गया। नीचे लॉबी में वो चंद लम्हों के हिचकिचाया। इसने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, कहीं कोई और मुंतजिर ना हो, लेकिन लॉबी सुनसान थी। वो बाहर निकल आया। रीटा के फ्लैट तक का पैदल फासला 1.5 मील के करीब था। सिमोन पैदल ही चल पड़ा। वो बहुत मोहतात था। मेन रोड को नजरअंदाज करके झीली सड़कों पर चल रहा था। रास्ते में इसने याओ के हिफाजती दरवाजे वाले ताले की चाबी एक नाले में उछाल दी। वो रिवाल्वर भी फेंकना चाहता था, मगर कुछ देर गौर करने के बाद इसने रिवाल्वर को अपने पास रखने के हक में फैसला किया। अब दलदल में इसका पांव पड़ चुका था। रिवाल्वर की मौजूदगी इसके लिए तकलीफ का बाइस थी। चलने के दौरान वो हिसाब लगाने की कोशिश भी कर रहा था। जॉनसन के लिए खरीदी हुई 4.5 किलोग्राम हेरोइन याओ के फ्लैट में ही रह गई थी, बल्कि इंस्पेक्टर विभाकर की जेब में। वही ख्याल आ जाता तो वो इंस्पेक्टर से हेरोइन जरूर निकलवा देता। बहरहाल यही गनीमत था कि वो वहां से बखैर आफियत निकल आया। लॉबी में रोशनी इतनी कम थी कि इंस्पेक्टर इसकी ताकत और फुर्ती के बारे में दुरुस्त तज्जिया नहीं कर पाया था। दूसरे इसने खुद ही फर्ज कर दिया था कि वो जहाज से उतरा हुआ कोई सेलर है। अब वो इसे गलत समत में तलाश करेगा। सूरत हाल यह है कि इंस्पेक्टर विभाकर को सिमोर को इनकी जारी शख्सियत के अलावा कुछ भी मालूम नहीं। और वैसे भी सिमोर ने सोचा, कल के बाद मुझे कोई परवाह नहीं रहेगी। मुझे शनाख्त किया जाए या ना किया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने गौर करने के बाद फैसला किया कि सूरत हाल खराब हरगिज नहीं है। इसने फैसला भी किया कि वो जे को ये सब कुछ नहीं बताएगा। जे को पहले ही कम मसाइल दरपेश नहीं कि वो इसे एक और मसले में उलझा दे। तुम्हारा ख्याल है मैं इस कहानी पर यकीन कर लूंगा? जॉनसन ने कहा। तुम पागल हो गए हो। दिमाग ठंडा रखो, सिमोन ने से मशवरा दिया। मैंने जो कुछ कहा है हर्फ बहर्फ दुरुस्त है। वो दोनों इस वक्त फ्लैट के बाथरूम में थे। सिमोन थके थके अंदाज में फ्लैश की टंकी पर बैठा था। जॉनसन इसके सामने मुतवहिश खड़ा था। रीटा बदस्तूर ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। जॉनसन, मैं सच कह रहा हूँ, सिमोन ने जोर देकर कहा। शुक्र करो कि मैं पकड़ा नहीं गया, वरना तुम भी मुसीबत में फंसते और ये $600 भी हाथ से जाते जो बच गए हैं। तुम खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त। लानत हो ऐसी खुशकिस्मती पर। जॉनसन ने भी नाकर कहा। तुम मुझसे $1000 लेकर निकले, 2.5 घंटे बाद वापस आए $400 गंवा के, और वो भी अपने नहीं मेरे $400, और कहते हो कि मैं खुशकिस्मत हूँ। देखो मैं तुम्हें एक सबूत दिखाता हूँ। सिमोन ने कहा। जेब से रिवाल्वर निकाल के दिखाया। ये इस नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर का रिवाल्वर है। ये सबूत है मेरी सच्चाई का। जो कुछ हुआ इस पर मुझे भी अफसोस है। मैं वादा करता हूँ कि वो $400 तुम्हें लौटा दूंगा। वो तो बात की बात है, मुझे तो माल चाहिए। देखो अगले महीने में तुम्हें सैन फ्रांसिस्को मिलूंगा और तुम्हारे सारे दिल दर्द दूर कर दूंगा। तुम रीटा से कुछ ना कहना, इसे मैंने नहीं बताया है। यकीन करो मैं तुम्हें इतना माल दूंगा कि तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ $400 में तुम्हें कितनी हेरोइन मिली थी? जॉनसन अब भी मुश्किल नजर आ रहा था। 100 ग्राम, सिमोन ने झूठ बोला। इसके पास इस वक्त बस इतनी ही थी। तुम फिक्र ना करो जॉनसन, मैं तुम्हें माल जरूर दूंगा, मगर 1 माह बाद। माइकल को शोफर की वो ड्यूटी बहुत बेजारकुन लगती थी। वो हमेशा सोचता था कि एहतियात इतनी बढ़ती जाती है और इतने अरसे में कोई मामूली सा खतरा भी सामने नहीं आया। इसे स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हुए 4 साल हो चुके थे। गुज़श्ता 2 साल से वो भारत में था। अब से 2 माह बाद इसकी जान छूटने वाली थी। इसे इस गर्ज नहीं थी कि इसके अंदर पोस्टिंग कहाँ होगी। बस वो भारत से बेजार हो चुका था। यहाँ इन दिनों इसकी पहली जिम्मेदारी डेविड कैली की बाहिफाजत ऑफिस पहुँचाना थी। वो बहुत गर्म सुबह थी, हवा ठहरी हुई थी, पलाई माउथ का एयर कंडीशन चल रहा था। इसके बावजूद इसे पसीना आ रहा था। इसकी वर्दी की कमीज का कॉलर भीग गया था। बाखली होलिस्टर में रखा हुआ 5 फायर वाला इशारे 38 बोर का हल्का रिवाल्वर इसे बहुत बड़ा बोझ मालूम हो रहा था। ट्रैफिक की ज्यादती की वजह से वो अपने मामूल से 2 मिनट लेट हो चुका था। इसने गाड़ी कुंवारी हिल के ड्राइववे में मोड़ी और गार्ड को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। गार्ड ने हाथ लहराकर इसे गुजरने का इशारा किया। इसने गाड़ी इमारत के दाखिली दरवाजे के सामने रोक दी। फिर इसने अपने VHF रेडियो का हैंडसेट उठाया और सिक्योरिटी ऑफिस के ड्यूटी इंचार्ज से रब्ता किया। इसने इसे बताया कि वो कुंवारी हिल पहुंच चुका है। गाड़ी का इंजन बदस्तूर चल रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग के करीब लगा वो लीवर खींचा जिससे दरवाजे गैर मुकफ्फल होते थे। फिर वो दरवाजा खोलकर उतरा और इसने आर्मर्ड प्लेट वाला भारी अकबी दरवाजा खोला। डेविड के लिए इस वक्त तक कार के पास पहुंच चुका था। इसके हाथ में इसका अटैची केस था। मॉर्निंग माइकल। मॉर्निंग सर। गर्मी बहुत शदीद है। जी हाँ जनाब। डेविड कैली पिछली सीट पर बैठ गया। माइकल ने दरवाजा बंद किया, फिर घूमकर अपने दरवाजे की तरफ बढ़ गया और सीट पर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे को मुकफ्फल करके इसने कार आगे बढ़ाई। कुंवारी हिल से निकलते हुए इसने रेडियो पर सिक्योरिटी ऑफिस को इत्तला दी, हम रवाना हो रहे हैं। माइकल ने बैक व्यू मिरर में अकबी सीट पर बैठे शख्स को देखा। इसने मामूल के मुताबिक अपनी चाबी से डॉग का वो छोटा सा बक्स खोल लिया था जो हर सुबह माइकल खुद इसे लाकर देता था। अब इस बक्स में मौजूद कागजात का मुताला करने में मसरूफ था। माइकल नहीं जानता था कि इन कागजात की नोयत क्या है।
वो ये जानता था कि डेविड कैली एनएक्सी का एक अहम आदमी है। ये अंदाजा लगाने इसका काम नहीं था कि डेविड कैली कितना अहम है, लेकिन ये हकीकत थी कि कौंसल खाने के अफसरान में कौंसल जनरल के अलावा डेविड कैली वो वाहिद आदमी था जिसे बॉडीगार्ड दिया गया था। इसका खुला मतलब यह था कि कौंसल जनरल के बाद अहम तरीन आदमी था। चीथम रोड पर आने के बाद कार की रफ्तार बढ़ गई। माइकल अब अपनी आइंदा पोस्टिंग के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि यूरोप में पोस्टिंग हो जाए तो कितना अच्छा रहे। वो हमेशा लंदन और पेरिस के ख्वाब देखता रहता था। इसे डर था कि इसे लातीनी अमेरिका ना भेज दिया जाए। वहाँ कातिलाना हमले होते रहते थे। बॉडीगार्ड का काम वहाँ बहुत दुश्वार था। कई बॉडीगार्ड्स मारे भी जा चुके थे। वो इन ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन इसके दिमाग का एक अहम हिस्सा अपने काम पर मरकूज था। इसकी निगाहें विंड स्क्रीन के पार देख रही थी। वक्तन फवक्तन वो अकबनुमा आईने में भी दाएं बाएं भी देखता था और जो कुछ देखता था दिमाग की जुज़ियात में महफूज भी करता था और इसका तजिया भी करता था। प्लाईमाउथ के पीछे एक सियाह मर्सिडीज थी। इसमें दो अफराद थे, एक मुकामी और दूसरा सियाफाम। आगे सब्जी से लदा हुआ एक ट्रक था। सीमोर क्वीन सियाह मर्सिडीज ड्राइव कर रहा था। इसने प्लाईमाउथ से मुनासिब फासला रखा था। जे इसके बराबर बैठा था। दोनों ने दस्ताने पहने हुए थे। लिबास के ऊपर वो हल्के ओवरऑल पहने हुए थे। प्लास्टिक के वायर्स वाले दो क्रश हेलमेट सीट पर इन दोनों के दरमियान रखे थे। जे ने वॉकी टॉकी का ट्रांसीवर उठाया, ट्रांसमीटर का बटन दबाया और कहा, यूनिट 1 यूनिट 2 से मुखातिब है। यूनिट 2 रिसीविंग। एक लम्बे बाद सफदर की आवाज़ सुनाई दी। हम हदफ के पीछे हैं, चीथम रोड पर पहुंचने वाले हैं। हम शेड्यूल से 1 मिनट पीछे हैं रॉजर। यूनिट 3 तुम भी सुन रहे हो? जे ने कहा। सादत की आवाज़ सफदर से ज़्यादा साफ सुनाई दी। वो सुरंग के बम्बई वाले सिरे के बाहर डाक खाने की गाड़ी में बैठा था। मैं सुन रहा हूँ नंबर 1, इस तरफ सब ठीक ठाक है। हम अब चीथम रोड पर पहुंच रहे हैं। माइकल ने रेडियो पर सिक्योरिटी ऑफिस को मुतल्ला किया। रॉजर। माइकल ने रेडियो ऑफ किया और कैली से मुखातिब हो गया। मिसिस कैली कैसी हैं जनाब? डेविड कैली को मुदाखलत नागवार गुजरी, ताहम इसने नरम लहजे में कहा, वो कलकत्ता गई हुई है अपनी माँ के घर। ओह, तो आप अकेले हैं, यानी सैंडविच पर गुजारा हो रहा है। कैली ने जवाब नहीं दिया। माइकल समझ गया कि वो बात करने के मूड में नहीं है। चीथम रोड पर सीमोर ने दरमियानी फासला बढ़ाया और अपनी लाइन तब्दील कर ली। अब वो तेज रफ्तार गाड़ियों वाली लाइन में था। इस यूनिट 1 यूनिट 2 से मुखातिब है। जिन्हें ट्रांसमीटर में कहा, अब हम फ्लाई ओवर के करीब पहुंच रहे हैं, 2 मिनट बाद तुम्हारे साथ होंगे रॉजर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। सादत को अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने ट्रांसमीटर का बटन दबाया। जे वो बोला तो इसकी आवाज़ चीख से मुशाबा थी। नाम लेने की जरूरत नहीं बेवकूफ़, जे ने सरगोशी में इसे डांटा। मेरी गाड़ी के एन सामने पुलिस की कार रुकी है, सादत ने घबराए हुए लहजे में कहा। जे को अपना खून रगों में सर्द होता महसूस हुआ। 3 सेकंड तक तो कुछ ही नहीं बोल सका। फिर इसने कहा, वो क्या कर रहे हैं? खुदाया, वो तो गाड़ी से उतर रहे हैं। मुमकिन है चोरी की गाड़ियों की तलाश में हो। तुम चुकने बैठे हो, जे ने मशवरा दिया। लेकिन डाकखाने की गाड़ी, ये बात तय है कि अभी इसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। बस तुम अपनी जगह बैठे रहो डट कर। अब वो इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे वॉकी टॉकी छुपाना होगा। ओवर एंड आउट। जे ने सर घुमाकर सिमोर की तरफ देखा। इसकी निगाहों में वहशत थी। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट की मोहलत है, फिर हम सुरंग में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद हमारा सादत से राब्ता नहीं रहेगा। अगर पुलिस की गाड़ी नहीं हटी तो हमें मनसूबा तर्क करना होगा, सिमोर ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा। मनसूबा तर्क करना होगा? नामुमकिन, जे ने तुंद लहजे में कहा। हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिग्नल की रोशनी सुर्ख थी। वो रुके। इनके ऊपर प्लाईमाउथ के दरमियान 2 और कारें थी। सिमोर ने हतमी लहजे में कहा, अगर पुलिस वाले मौजूद हैं तो मैं इस काम में हरगिज़ हाथ नहीं डालूंगा। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, जे ने वहशाना लहजे में कहा और ग्लोव कंपार्टमेंट में हाथ डालकर अपना रिवॉल्वर टटोलने लगा। सिमोर ने तेजी से जेब में हाथ डाला और कोई चीज़ बाहर निकाली। कोई हिमाकत ना करना दोस्त, इसने धीमे लहजे में कहा। मगरब लहजे में धमकी दी। जे ने बड़ी बेयकीनी से देखा। सिमोर के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का रुख इसके सीने की तरफ था। सिग्नल की बत्तियां भी सुर्ख थी। कार के सामने से और अकब से बेशुमार राहगीर सड़क पार कर रहे थे। ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? जे ने पूछा। यह बड़ी तवील कहानी है, बस ये समझो कि इसकी मौजूदगी से मुझे तक़वियत का एहसास हो रहा है। और मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर पाल, अगर सादत हमें मुतल्ला करता है कि पुलिस वाले टल गए हैं तो मंसूबे पर अमल दरामद होगा, वरना नहीं। और जाहिर है कि इत्तला हमें सुरंग में दाखिल होने से पहले मिलनी चाहिए। अब तुम फौरी तौर पर सफदर को सूरत हाल से मुतल्ला कर दो। जे ने इसे शोलाबार नजरों से देखा। इस वक्त सिग्नल की रोशनी तब्दील हो गई। सिमोर ने कार आगे बढ़ा दी। वो एक हाथ से स्ट्रिंग थामे हुए था और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। जे ने वॉकी टॉकी पर सफदर से राब्ता किया। यूनिट 2, तुमने सब कुछ सुन लिया है, तैयार रहो रॉजर, सफदर ने कहा। इसने सिमोर और जे की और जे और सादत की गुफ्तगू सुन ली थी, मगर इसके लहजे में बेपरवाही थी। माइकल ने इस मोटरसाइकिल को एक साइड स्ट्रीट से नमूदार होते देखा। मोटरसाइकिल सुरंग की तरफ जाने वाली सड़क पर बुड़ी थी। इसका ड्राइवर बहुत बेपरवाही का मुजाहरा कर रहा था। वो गाड़ी को दरमियान लहराते हुए आगे बढ़ रही थी। माइकल को इस पर गुस्सा आया।
موٹر سائیکل والوں کی غیر ذمہ داری کا اسے بہت تجربہ تھا۔ موٹر سائیکل چھوٹی سی چیز تھی، لہٰذا وہ سمجھتے تھے اسے ذرا سی بھی جگہ سے نکالا جا سکتا ہے، اور یہ عجیب بات تھی کہ موٹر سائیکل سوار جب بھی ٹریفک کے ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دور دور تک کوئی پولیس والا موجود نہیں ہوتا تھا۔ سرنگ اب قریب آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار نے ایک سست رفتار ٹیکسی کو ہوش میں لانے کے لیے بے صبرے پن سے ہارن بجایا، پھر اسے اوورٹیک کر کے فلائی اوور پر پہنچ گیا۔ مائیکل نے، جو موٹر سائیکل سے 20 گز پیچھے تھا، عقب نما آئینے میں دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک منی بس تھی۔ اس نے ریڈیو آن کیا اور سیکورٹی آفس کو مطلع کیا۔ ٹائفون، اب سے تقریباً 1 منٹ بعد ہم سرنگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ سعادت ڈاک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا جسم پسینہ اگل رہا تھا۔ وہ پولیس کار میں بیٹھے ہوئے 2 پولیس والوں کو دیکھ رہا تھا۔ جے کا اندازہ دور ثابت ہوا تھا۔ پولیس والے گاڑی سے اتر کر ٹہلتے ہوئے ایک زیر تعمیر عمارت کی طرف گئے۔ وہاں جو گاڑیاں کھڑی تھیں انہوں نے ان کی نمبر پلیٹیں خاص طور پر چیک کی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے جیب سے ایک فہرست بھی نکالی تھی جو بلا شبہ مسروقہ گاڑیوں کی رہی ہوگی۔ اس چیکنگ کے بعد وہ دوبارہ پیٹرول کار کی طرف چلے آئے تھے۔ اس کے بعد سب تک گاڑی میں ہی تھے۔ انہوں نے ریڈیو پر کسی سے رابطہ بھی کیا تھا۔ سعادت جانتا تھا کہ اگر وہ رکے رہے تو پروجیکٹ تباہ ہو جائے گا، لیکن انہیں وہاں سے ہٹانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اب بمشکل 8 منٹ کی مہلت رہ گئی تھی اور ٹرانسیور استعمال کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرانسیور کو اس نے گاڑی کی سیٹ کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ اس نے پھر پیٹرول کار کی طرف دیکھا۔ پولیس والوں کے ٹلنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سیاہ مرسیڈیز منی بس کے پیچھے تھی، لہٰذا پلائے موت کے ڈرائیور اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب سڑک چوڑی ہو رہی تھی، آگے چنگی تھی، وہاں گاڑیوں کی قطار تھی، لوگ ٹیکس ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پلائی موت کو آگے بڑھتے دیکھا۔ وہ معمول کے مطابق بائیں جانے والی لین میں تھی۔ صفدر کی موٹر سائیکل دائیں جانے والی لین میں تھی۔ پھر صفدر نے موٹر سائیکل روک دی۔ وہ مرسیڈیز کو آگے نکلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ جے ملول تھا، ہر چیز صحیح پوزیشن میں تھی، منصوبے کے عین مطابق، لیکن منصوبہ چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ چوپٹ تو نہیں، اس نے تلخی سے سوچا، ہاں ملتوی کہنا زیادہ مناسب ہے، آج نہیں تو چند روز بعد صحیح۔ میرا خیال ہے منصوبہ تو گیا، سیمون نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے مجھے قائل کر دیا، جے نے چڑھ کر کہا۔ اب یہ ریوالور ہٹا لو، چنگی والوں کو دکھانا چاہتے ہو کیا؟ سیمون نے ریوالور جلدی سے جیب میں رکھ لیا۔ انہوں نے ٹیکس ادا کیا۔ جے نے دیکھا پلائی موت اب سرنگ میں داخل ہونے ہی والی تھی۔ اب زیادہ سے 10 سیکنڈ میں ان کی گاڑی بھی سرنگ میں داخل ہو جاتی۔ اس وقت تک سعادت کی طرف سے کلیئرنس ملنا ضروری تھا۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے ٹرانسیور کو دیکھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ سرنگ کا دہانہ تیزی سے انہیں نگلنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بس مسٹر پال، اب منصوبہ ترک کرنے کے سوا کچھ چارہ نہیں، سیمور نے کہا۔ جے ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیمور سے متفق ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سرنگ کا دہانہ تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ جے مٹھے پیچھے بیٹھا تھا۔ کار کی رفتار تو کم کرو، جلدی کیا ہے؟ وہ سیمور پر غرایا۔ سیمور نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا مسٹر پال، منصوبے کو ملتوی سمجھو۔ اور یہ سچ تھا، کیونکہ اب محض چند سیکنڈ کی مہلت ہی رہ گئی تھی۔ مگر اس میں جے پال کی گود میں رکھے واکی ٹاکی سے سعادت کی ہسٹری آواز ابھری، جے پولیس کار جا رہی ہے، مسئلہ صاف ہے، وہ جا رہے ہیں۔ اس کی آواز اچانک بے معنی بھن بھناہٹ پہ تبدیل ہو گئی۔ مرسیڈیز سرنگ میں داخل ہو گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، امریکی سفیر کے اغوا کی سنسنی خیز کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔